Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of House Academy. Let's begin with today's daily news review. So today is 23rd of March, which is celebrated as Shaheed Divas or Martyrs Day to commemorate the death of three or contributions of three important personalities of India freedom struggle, that is Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, who were hanged till death on 23rd of March 1931 in the case of murder of John P. Saunders, and also the bomb case, that is bomb was thrown in Central Legislative Assembly to prevent the passing of Public Safety Bill and Trade Dispute Bill. So these were the cases, and in a young age of 23, 24, and 22, respectively, these three people or these three heroes of India attained martyrdom. हम राव एकेडमी की ओर से तीनों ही शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. चलिए आगे चलते हैं और आज का पहला न्यूज आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट मैरिटल रेप. So, Supreme Court will hear a petition seeking to criminalize marital rape. What is marital rape? Marital rape, which is an exception to section 375 of IPC, जिसके अंतर्गत रेप की सजा दे रखी है. Basically, when a man indulges into a sexual intercourse with his wife, which is 18 plus in age, without her consent, then it is named as marital rape. This situation is named as marital rape. And it is an exception to section 375. Exception 2 to section 375 decriminalizes marital rape. So, section 375 basically differentiate or in rape into two categories. One is normally a rape, but and second is marital rape. And what is marital rape? We have already discussed. And marital rape is not punishable under section 375 of IPC because its exception 2 decriminalizes marital rape and holds that sexual intercourse by man with his own wife who is not under 18 without her consent is not rape. Means under this section, marital rape does not constitute rape under this section. So हम जरूर marital rape बोल रहे हैं, but basically section 375 does not consider it as rape. ठीक है. इसके खिलाफ पिटीशन आया है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए. दो केसेस के बारे में वर्णन किया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. फर्स्ट वन इज a case in Delhi High Court. Division bench of Delhi High Court had in May 2022 delivered a split verdict in a separate case on an identical issue of marital rape. Justice Rajiv Shakdher, who headed the two-judge bench, struck down an unconstitutional exception to section 375. मतलब इस particular section को exception को उन्होंने struck down कर दिया, saying that it is unconstitutional and marital rape should be considered as rape. Whereas Justice C. Harishankar, associate judge on the same bench, rejected the plea to criminalize marital rape. So this were a split judgment. And previously, the Karnataka High Court had earlier held that a husband was liable to be charged for rape under the Indian Penal Code if he has forcible sex with his wife. So इसको कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया. ठीक है. कर्नाटका गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टेड द जजमेंट एंड विद बाय फाइलिंग एन एफिडेविट इन द हाई कोर्ट. सो ये दोनों केसेस के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है. ठीक है. चलिए, साथ ही साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि मैन इज अ मैन, एक्ट इज एन एक्ट, रेप इज रेप, एंड बी इट परफॉर्म बाय मैन husband on the woman wife, it will be considered as rape and punishable under section 375, thereby criminalizing marital rape. ये एक्सेप्ट किया कर्नाटका हाई कोर्ट ने. बट नाउ द
पिटीशन इज इन सुप्रीम कोर्ट कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो दैट देयर इज एन एंटीसीडेंट स्टैब्लिश्ड जजमेंट कि इन केस ऑफ forcible sex in marriage by a man with his wife who is not under 18, should it be considered as rape or not? देखो दोनों ही पक्ष हैं. पक्ष एक है कि it is the fundamental right of the woman that if she gives consent then only a sexual intercourse shall be performed. But there is a negative side or flip side of the coin that इससे बहुत सारे फेक केसेस बढ़ेंगे जुडिशरी में, बिकॉज कंसेंट कैन नॉट बी प्रूवन. सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के पहले ऐसा तो नहीं है कि लिखित तौर पर हस्बैंड विल टेक अ कंसेंट. सो इफ द वाइफ डिनाइज कंसेंट जस्ट आफ्टर हैविंग सेक्स, सो हाउ कैन इट बी प्रूव्ड इन कोर्ट? तो ये एक समस्या इसमें होगी कि या तो अगर कन्विक्शन रेट बहुत कम आएंगे या फिर फेक केसेस दर्ज होंगे, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और वाइफ ने केस लगा दिया, ऐसे भी मामले आ सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों ही पक्ष यहां पर सुने जाने चाहिए, एनालाइज किए जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही कोई निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा. ठीक है, गवर्नमेंट कंसिडर्ड इट एज अ पॉलिसी इश्यू, पॉलिसी फ्रेमवर्क की पॉलिसी के हिसाब से हमारा अधिकार है कि हम इसमें क्या करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पिटीशन हियर कर रहा है. देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के साथ में क्या करता है. इसके एक्सेप्शन को स्ट्रक डाउन करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने कि एक जज ने करने की का प्रयास किया, या फिर दे मेंटेन द स्टेटस क्यू कि हाँ इट इज मैरिटल रेप विल नॉट बी कंसिडर्ड रेप अंडर सेक्शन 375 और पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा. तो ये देखने वाला केस होगा. अभी देखते हैं इसमें आगे पिटीशन में क्या होता है, क्या निर्णय आता है. ठीक है, चलिए. जो एक्टिविस्ट है इनमें रुत मनोरमा has argued that the exception undermined women's consent to sex and violated bodily integrity and autonomy and dignity of women. जो हम बात कर रहे थे कि वुमेन की डिग्निटी, वुमेन का खुद का फ्रीडम टू गिव कंसेंट फॉर हैविंग सेक्स, तो ये पूरा जो है ये सेक्शन जो है, ये एक्सेप्शन जो है सेक्शन का, ये इसको अंडरमाइन करने का काम करता है. ठीक है, वॉयलेट करने का काम करता है. तो ये इसमें बात कही जा रही है. चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा आगे. चलिए अभी अगला आर्टिकल देखते हैं जब तक डिसीजन नहीं आता. अवॉइड मीडिया ट्रायल, सीजीआई एग्जॉस्ट जर्नलिस्ट एट एन अवार्ड फंक्शन. हमने ये आर्टिकल इसलिए चुना क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे मीडिया ट्रायल्स पर. देखिए, किसी भी व्यक्ति पर फेयर एंड जस्ट ट्रायल करने का अधिकार इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है? जुडिशरी को. But there are two types of trial other than judiciary happening in India in the past few years. एक है मीडिया ट्रायल. समझेंगे अभी, मतलब पूरा समझेंगे क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज मीडिया ट्रायल्स एंड सेकेंड वन इज पब्लिक ट्रायल. मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल का मतलब क्या है? जुडिशरी में एक प्रोसेस है कि किसी व्यक्ति को अपराधी मान करके उसके ऊपर केस दर्ज किया गया. ठीक है, उसको अपराधी अभी घोषित नहीं किया गया है, सिर्फ अक्यूज किया गया है कि ही माइट हैव परफॉर्म्ड एन एक्ट. ठीक है, और एक विक्टिम होगा जिन्होंने केस लगाया होगा. तो देयर इज ऑलवेज दो पक्ष होते हैं, एक तो विक्टिम होगा, एक अक्यूज्ड होगा. ठीक है, जब तक केस प्रूव ना हो जाए, जब तक अक्यूज्ड जो है ही इज कंसिडर्ड इनोसेंट माना जाएगा. ठीक है, और इनोसेंट माना जाएगा तो उसको इनकी इनोसेंट प्रूफ करने की लाइबिलिटी भी इनके ऊपर है कि क्या इनोसेंट है या नहीं है, ये इनको प्रूफ करना है और इनको प्रूफ करना है कि अपराधी है या नहीं है. ठीक है, कल्प्रिट है, क्रिमिनल है या नहीं है, ये विक्टिम को प्रूफ करना है, विक्टिम की लॉयर की टीम्स को प्रूफ करना है और अक्यूज्ड को प्रूफ करना है कि मैं इनोसेंट हूं. ठीक है, अब जब तक जुडिशरी उस प्रोसेस को फॉलो करके निर्णय पर नहीं आती है, कन्विक्शन तक नहीं आती है, उसके पहले ही अगर मीडिया इनमें से किसी भी एक को, अक्यूज्ड को, या तो इनोसेंट बोल दे, बिना काम से धर्म के मामले की वजह से फंसाया जा रहा है, इनोसेंट प्रूव करने का प्रयास करे, या फिर कल्प्रिट घोषित कर दे, क्रिमिनल घोषित कर दे कि यही गुनहगार है,
तो इसे कहते हैं मीडिया ट्रायल। अगर मीडिया घोषित करने लगे जो जजमेंट वास्तविकता में एक जुडिशियल प्रक्रिया के बाद आना चाहिए था, अगर उसको मीडिया ही जजमेंट के तौर पर, नैरेटिव के तौर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, तो दैट इज नोन एज मीडिया ट्रायल। कई बार वो छोटे छोटे डब्बों में बैठ करके जब बहस करते हैं एंकर्स, तो अपनी मर्यादाओं को भूल करके मीडिया, जो कि चौथा पिलर है, ठीक है, डेमोक्रेसी का, वो उसकी मर्यादाओं को भूल करके जुडिशरी की लाइन में जब घुसने लग जाए, जुडिशरी के कार्य क्षेत्र में जब इंटरफेयर करने लग जाए, और जजमेंट जब जुडिशरी को सुनाना है और वो खुद सुनाने लग जाए जजमेंट, और एक नेशनल मीडिया पर, ठीक है, नेशनल टेलीविजन पर या फिर लोकल रीजनल टेलीविजन पर एक नैरेटिव सेट कर दे, ठीक है, और वो नैरेटिव हो सकता है कि जुडिशरी के खिलाफ हो, जुडिशरी हो सकता है कि उस नैरेटिव के खिलाफ जजमेंट दे, ठीक है, उसके विपरीत जजमेंट दे, लेकिन इन्होंने पहले से नैरेटिव सेट कर दिया, तो होता क्या उसमें, जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जो बाद में भले इनोसेंट प्रूफ भी हो जाए, पर इन्होंने अगर कल्प्रेट घोषित कर दिया है तो उसकी डिग्निटी हार्म होती है, ठीक है, और हर कोई व्यक्ति डिफेमेशन का केस तो नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यही कहा है कि मीडिया ट्रायल कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशन as it creates narrative which make a person guilty in the eyes of the public even before being convicted by court। कोर्ट उसको कन्विक्ट घोषित करे उसके पहले ही मीडिया उसको पब्लिक की नजर में गिल्टी साबित कर चुकी होती है, गुनहगार साबित कर चुकी होती है, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी पर, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति पर बहुत गलत असर पड़ता है। सुसाइड कर सकता है व्यक्ति, ठीक है, या फिर उसको वो सोशल बाइकॉट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ने नैरेटिव सेट कर दिया, और हमारे यहाँ की जनता जो है वो कोर्ट के निर्णय के पहले मीडिया का निर्णय मान ले और बोले कि हाँ इसी ने किया था, ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज नॉट दैट मच रैशनल इन द थिंकिंग प्रोसेस, कि जो मीडिया ने बोला उसको भी थोड़ा रैशनली देखे, जो मीडिया ने उनके लिए बोल दिया वो उनके सत्य हो जाता है, ठीक है, और वो सत्य हो जाता है तो फिर वो उस पर्सन को, जिनको जो नैरेटिव इन्होंने सेट किया उसको मानने लगते हैं, और मानने लगते हैं तो जिस पर्सन को गुनहगार साबित कर दिया मीडिया ने उसको वो गुनहगार मान लेते हैं, और गुनहगार मानने के बाद, ठीक है, जो आपको करना है वो किया जाएगा, पब्लिक के द्वारा पब्लिक बाइकआउट किया जाएगा। सेम चीज अगर पब्लिक करे, पब्लिक ट्रायल कहलाता है। जैसे कि अगर आपने एक पिक्चर देखी हो अजय देवगन जी की, दैट इज गंगा जल, गंगा जल, इस पिक्चर में क्या होता है कि बैटरी के एसिड से खुद ही सड़कों पर पब्लिक जनता न्याय कर देती है, ठीक है, तो ये पब्लिक ट्रायल है कि पब्लिक मिल करके ट्रायल खुद ही कर दे। मॉब लिंचिंग, पीपल से इट, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन लिंचिंग से इट एज पब्लिक ट्रायल, कि ये जनता का न्याय है, ठीक है, बट जनता ने ही जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन पर विश्वास दिला करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की बात कही है, और जब जुडिशरी स्टैब्लिश की है जनता के द्वारा मिले गए पावर से, जो संविधान बना उसके अंतर्गत जुडिशरी है, और जुडिशरी को जब हमने पहले ही अधिकार दे दिए कि आप ट्रायल कीजिए, आप घोषित कीजिए कि अपराधी है या नहीं है, और हमारी जुडिशरी तो काम ही इस तरीके से करती है कि भले ही 100 अपराधी, ठीक है, 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले, पर ये लोग वो बेगुनाह को सजा दे देते हैं, अपराधी भले ही छूट जाए, ठीक है, इनका भी काम वही है, अपराधी भले ही छूट जाए लेकिन बेगुनाह को कई बार ये सजा दे जाते हैं, और ऐसे मामले देखने को मिले। विजिलेंटिज्म में काउ विजिलेंटिज्म जो मामला चलता है, ठीक है, अगर किया भी है किसी ने गोमांस की तस्करी, तो पब्लिक इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रायल, आप रिपोर्ट कीजिए, जुडिशरी विल टेक अप द केस, ठीक है। साइमल्टेनियसली मीडिया इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू गिव जजमेंट, कानूनी तौर पर legally judiciary is authorized, constitutionally judiciary is the institution to give the judgment over one's crimes or whatever act they have performed, उनके ऊपर जजमेंट देने का काम जुडिशरी का है, ना ही मीडिया का, ना ही पब्लिक का। बट जब ये लोग करने लगते हैं इस तरह की हरकतें, ठीक है, ट्रायल के पहले ही किसी व्यक्ति को गिल्टी साबित कर देना, इनोसेंट साबित कर देना, उसकी वजह से पब्लिक में एक नैरेटिव सेट होता है और लंबे समय तक इसके रिपरकशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट सीजीआई हैज हाइलाइटेड। पास्ट में अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिल भी रही है, बुलडोजर न्याय, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट जस्टिस, गवर्नमेंट इज गिविंग जस्टिस, ठीक है, डिलीवरिंग जस्टिस ऑन कॉल, कि जैसे ही किसी ने क्राइम किया हम बुलडोजर लेके उनका घर तोड़ देंगे, ठीक है,
किसी किसी की निगाह में सही है कि गवर्नमेंट जब तक पावर इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक इसका हल नहीं होगा, गुंडा राज खत्म नहीं होगा, ठीक है। पर जुडिशरी बार बार कहती आई है कि देयर इज ऑलरेडी अ स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। हाँ, माना कि डिले की जा रही है, हम उसको सुधार रहे हैं, ठीक है, डिले होता है न्याय देने में, लेकिन हम उसको सुधारने में लगे हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में लेकर के न्याय कर दो। तो उसके खिलाफ भी काफी सारी चीजें, पिटिशंस लगती रहती हैं। चलिए, तो मीडिया ट्रायल हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया रिलेटेड इश्यूज जो हमको पेपर 2 में पूछा जाता है, वहां के लिए हमारे काम का टॉपिक है, ठीक है, मेंस के लिए काम का टॉपिक है। गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन पीओके। शारदा पीठ पीओके में गवर्नमेंट जो है कॉरिडोर ओपन करने की बात कर रही है। लास्ट पहले जो है एक बार ऑलरेडी करतारपुर कॉरिडोर पंजाब, ठीक है, 2019 में ओपन किया गया था। वैसे ही गवर्नमेंट शारदा पीठ, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, एलओसी के जस्ट पास में ही है, ठीक है, वहां के लिए कॉरिडोर ओपन करने की बात कर रही है, ठीक है। Recently, reconstruction of Ma Sharda temple in Kupwara is a necessary and important step in the direction of discovery of Sharda civilization. Sharda civilization को जो है एक समय पर नॉलेज का केंद्र माना जाता था, सेंटर फॉर नॉलेज, ठीक है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसीलिए उसको प्रमोट करना, शारदा स्क्रिप्ट को प्रमोट करना, शारदा पीठ को प्रमोट करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। द मिनिस्ट्री सेड the systematic restoration and repair works was going on at 123 places, including many temples and Sufi places. In the first phase, 35 places were being renovated at the cost of 65 crore. तो ये सब चीजें करी जा रही हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद में गंगा जमुना तहजीब जिंदा होगी, ऐसा शाह साहब कह रहे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट कि शारदा पीठ को फिर से रिजुवनेट किया जाए, वहां के लिए कॉरिडोर स्टार्ट किया जाए, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। शारदा पीठ हमको पता होना चाहिए कहां है, प्रीलिम्स के काम का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट से? आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में हमने पास्ट 1-2 दिन पहले भी चर्चा की है, ठीक है। आईपीसीसी की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, इट एम्फसाइज द नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन एंड अडॉप्ट टू human caused climate change through mainstream effective and equitable action for a livable and sustainable future for all, ठीक है। बेसिकली ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि हमने टारगेट सेट किया था पेरिस एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर्स थे, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ग्लोबल हीटिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाने देना है। पर ये रिपोर्ट कहती है ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग अप हो चुका है बिकॉज ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस GHGs, इनके कारण ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग हो चुका है। और उनके हिसाब से 2030 के पहले ही हम 1.5 अचीव कर लेंगे अगर हमने सही तरीके से कदम नहीं उठाया। और अगर 1.5 क्रॉस कर जाते हैं तो इट विल रिजल्ट इनटू irreversible impact on biodiversity as well as sensitive ecosystems such as polar ice caps, glaciers, ठीक है, कोस्टल रीजन्स, ये सेंसिटिव इकोसिस्टम्स हैं, यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है, जिसको हम वापस से किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर पाएंगे अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ग्लोबल वार्मिंग चली जाती है तो, ठीक है। इस लिमिट को अगर हम ब्रीच कर देते हैं, ये लिमिट कब सेट की थी? COP21 में, पेरिस एग्रीमेंट। तो अभी काफी ज्यादा ये रिपोर्ट चर्चा में है, इसलिए याद हमको रखना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड एट 6th असेसमेंट साइकिल ऑन March 20, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय, ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में हम पहले डिस्कस कर लिए, इसलिए हमने शॉर्ट में अभी डिस्कस करने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं। द रोड टू एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, 1993, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड टीबी एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। और तभी से प्रयास किए जा रहे हैं कि टीबी को खत्म किया जाए। 2030 इज सेट एज गाइड डेडलाइन, ठीक है, टारगेट डेडलाइन कि 2030 तक हम एंड टीबी स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे और टीबी को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल थोड़ा सा सवाल खड़े करता है कि जो यहाँ पर एंड शब्द लिखा हुआ है ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया,
क्योंकि हम ऑलरेडी 3 एरियाज ऑफ कंसर्न पे काफी पीछे हैं। पहला है जो जिसमें मतलब अभी 3 की एरियाज जहां पर हम अंडर सर्व्ड हैं, ज्यादा हमने काम नहीं किया। पहला है वैक्सीनेशन, ठीक है, फर्स्ट एरिया इज वैक्सीनेशन, टीबी वैक्सीनेशन, एडल्ट टीबी वैक्सीनेशन, बचपन में तो लगती है। सेकेंड एरिया इज वैक्सीन के अलावा थेरेप्यूटिक एजेंट्स, मतलब कि दवाइयां, ठीक है। ऑलरेडी 50 साल से कोई रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ एंटी टीबी ड्रग्स रिसर्च हुआ है जो कि इंजेक्शन फ्री है, ठीक है, शॉर्टर कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, ये सब चीजों पे रिसर्च हुआ है, लेकिन ये अभी मास को अवेलेबल नहीं है, पब्लिक तक एक्सेसिबल नहीं है। और तीसरा जहां पर हम लैक करते हैं दैट इज डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो है वो हमारा आज भी पुराने मेथड से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी सब लोगों को डायग्नोस किया जाए, ठीक है। इंडिया जो कि G20 के प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, ठीक है, द वाराणसी स्टॉप टीबी बोर्ड मीटिंग दिस वीक 24 ऑफ मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के दिन, ठीक है, वाराणसी इंडिया में स्टॉप टीबी बोर्ड की बैठक होगी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कदम इन 3 एरियाज के लिए लेने चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल ने बोला है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया बेस्ड डिसीज है, ठीक है, फैलने वाली डिसीज है, जिसके बारे में इस पूरे का आर्टिकल में एड्रेस किया कि किस तरीके से खत्म होगा। तो ये 3 उन्होंने एरिया ऑफ कंसर्न बताया, ये 3 एरियाज में काम करना पड़ेगा कि एरियाज में तभी जाकर खत्म होगा। एक तो डायग्नोस्टिक्स बढ़ाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, एंटी टीबी ड्रग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन इंजेक्टेबल हो, ओरल पिल्स हो, और वो क्या काम कर पाए, जल्दी शॉर्ट ड्यूरेशन में टीबी खत्म करने का काम कर पाए। और एडल्ट वैक्सीन पर काम करना पड़ेगा जो कि सब लोगों को अवेलेबल करा दी जा पाए, एडल्ट्स को, क्योंकि एडल्ट्स में ये केसेस ज्यादा देखने को हमको टीबी के मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अबॉलिशन इज द वे। कल ही हमने ये इश्यू डिस्कस किया था कि related to capital punishment there are 2 issues. First one is constitutionality of capital punishment itself, ठीक है, and the second issue is method ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। दोनों ही मैटर पे बात चलती रहती है। दिस आर्टिकल बेसिकली फोकस्ड कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जो हमने कल डिस्कस किया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। इवन ये भी बताया गया दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि जो हैंगिंग है इट इज एज पेनलेस एज पॉसिबल, ठीक है, और अदर कोई मेथड नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है जिससे कि हम मतलब बेटर अल्टरनेटिव देन हैंगिंग, जिससे कि हम कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कर पाए। 35th लॉ कमीशन रिपोर्ट noted that कि electrocution, gas chamber, lethal injection were also considered to be less painful, but we are not yet convinced, ठीक है, कंक्लूजन पर हम नहीं जा सकते कि हैंगिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दें और कोई और मेथड अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो ये मेथड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए एक डिबेट चल रही है, एक डिबेट चल रही है कैपिटल पनिशमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी जाए, और ये आर्टिकल उसको फेवर करने के लिए है, ठीक है, कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में नहीं, टेकिंग अ लाइफ फॉर टेकिंग अ लाइफ, किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, हम उसका मर्डर मतलब उसकी हत्या कर दें, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दें, उसका जीवन जीने का अधिकार छीन लें, तो ये इनह्यूमन है, क्रूअल है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा ये आर्टिकल कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसको हमने कल बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये इशू एक बार फिर से देखना है तो कल का हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन खोल के देखिए, उसमें ये इशू बड़ा डिटेल में बच्चन सिंह केस में क्या बोला, ठीक है, क्या क्या इन दोनों के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, कौन से सेक्शंस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, आईपीसी की सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करी है। तो आज हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, और जिसको देखना है वो कल का डिस्कशन खोल के बिल्कुल देख सकता है। चलिए आखिरी आर्टिकल आज का कि यूएस अर्जेंटाइन स्कॉलर विंस एबल प्राइज विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो लुइस कैफरेली, एन एक्सपर्ट ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस, हैज बीन अवॉर्डेड एबल प्राइज, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा है एक, ठीक है, एमपीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए ही, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन से कुछ फ्रूटफुल डेटा मिला हो, फ्रूटफुल कंटेंट मिला हो। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे न्यूज आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।